Hello guys, Assalamu alaikum. How are you? I am fine. And when I was in Thailand, I visited Icon Siam. And you know, Icon Siam Mall is called the mother of all malls with 500 shops and 100 restaurants from more than 30 different countries, developed by the same tycoons behind Siam Paragon and EM Courtier. Icon Siam offers high-end brands, an indoor floating market, an art gallery, exhibition space, and a beautiful riverside location with views of downtown Bangkok. Located on the Thornbury side of the Chao Phraya River, you can reach Icon Siam by taking the BTS to Safan Taksin station and heading to the pier, where you can hop on a free river shuttle. You can also go to Krung Thornbury station and take a free shuttle bus, the slightly faster but far less impressive way to reach Icon Siam. Both options drop you off in front of the mall. Actually, whenever you go to Icon Siam, don't miss Siam Souk, the ground floor floating market, which has impressive features such as temples, long tail boats, and Thai pavilions. You can enjoy traditional Thai snacks, shop of regional handicrafts, and generally get the floating market expensive without leaving the mall. There are also Thai cultural performances and massage parlors. For drinks and bar snacks with a view, head up to HB's Beer Garden on the sixth floor, and it's open air but undercover, together with a constant river breeze to keep you cool. It's open till late, so it's a good spot to relax into the evening. For something snacker, choose the neighboring Tasana Nakorn Terrace Bar. The top floor of Icon Siam is an impressive museum with several looms of Thai antiques that you would otherwise only find in the museum in Old Town. Now we are reaching Icon Siam, and it is very amazing place, and I'm very excited to see what is inside in. And whether you are looking for a quick snack or a gourmet meal, Icon Siam's impressive range of restaurants has you covered. Among the favorites are the excellent Thai seafood dishes served at Thaling Ping, Morocco's famous beef noodles, and delectable cakes or at Coffee Beans by Dow. And also here is halal food for all Muslims, and it is very delicious. We have tasted with my husband Naveed, and it's really amazing. Here are some live uh, actually these are live scorpions, and here are very huge quantity of different meals, and we have lunch here. और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के खाने थे। अब एक्चुअली मैं दोनों लैंग्वेजेस में अपनी वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारी व्यूअरशिप जो है वो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में देखने वालों की है, और उनकी बहुत ज़्यादा हमारे मैसेज आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है इंग्लिश में इसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश स्पोकन होते हैं और उर्दू में उनको ज़रा वीडियोस कम समझ में आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है हम दोनों लैंग्वेजेस में इसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत देखी जाती हैं। तो इसलिए अब मैं चाहती थी कि इस जगह की जो नॉलेज है वो आपको उर्दू ज़बान में भी थोड़ी दे दी जाए, और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छे से भी शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। हम लोग आफ्टरनून में निकले थे, नवेद साहब और मैं यहाँ से निकले थे, और हम लोग बोट के ज़रिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि थाईलैंड बैंकॉक में ये जगह है आइकन सियाम, और यहाँ पर फ्री बोटिंग होती है, और बोट के ज़रिए आप जो है आइकन सियाम तक पहुँचते हैं। और यहाँ पर और बोटिंग करने के बाद जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो ये बहुत 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 बड़ा मॉल है। इसके 6 फ्लोर्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं, और नीचे जो है वो पूरा फूड कोर्ट है। यहाँ पर हलाल फूड भी था और हराम फूड भी था, दोनों ही तरह के फूड्स थे। हमने भरपूर कोशिश की। हलाल फूड एक्चुअली हमें थोड़ा सा आगे जाके मिल गया था, जहाँ पर ब्रोस्ट और जिंगर कुछ इस तरह की चीज़ें थी। राइस थे, नॉर्मली राइस होते हैं वो, उसको आप बिरयानी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल राइस थे, बस अच्छा टेस्ट था।
कोफ्ते थे और डिफरेंट चीज़ें थी जो अभी आगे जाकर आप वीडियो में देखेंगे। हमने इसमें अपनी क्लिप भी जोड़ी थी कि हम खाना खा रहे थे, हमने बहुत इंजॉय किया था और हमें भूख भी बहुत लग रही थी। हमने अपना फूड कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम भी खाई थी। ये भी एक स्टॉल था, यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो सर्व कर रही थी और यहाँ पे ये देखें हलाल फूड है 60 रैंकेट। हाँ सॉरी, यहाँ तो भात चलता था क्योंकि हम लोग इससे पहले आपको पता है कि मलेशिया से आए हुए थे, तो वहाँ पर जो है वो रैंकेट ही चलता था। यहाँ पर तो खैर भात चलता है। और ये देखें यहाँ पर इतनी रौनक थी, इतना खूबसूरत बना हुआ है, इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग थे, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ये म्यूज़िक चल रहा था, लाइव जो है कॉन्सर्ट हो रहा था। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, म्यूज़िक भी इंजॉय कर रहे थे, फूड कोर्ट में खाने भी खा रहे थे। और यहाँ पर नीचे जो था ग्राउंड फ्लोर पे हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सारी शॉप्स थी, हाथ से बनी हुई चीज़ें थी और बेकरी आइटम्स थे। यहाँ पर ये देखें नूडल्स थे और डिफरेंट खाने थे यहाँ पर, सब चाइनीज़ था, ये चाइनीज़ एक स्टॉल है। और यहाँ पर डिफरेंट तरह के खाने थे, सूप थे, सब अपनी अपनी पसंद से खाने को एंजॉय कर रहे थे। बैंकॉक जाने वालों को यहाँ पर लाजमी जाना चाहिए, इसका विज़िट करना चाहिए। और हम भी इसको सर्च करके यहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि जो बैंकॉक आए और वो यहाँ पर अगर आइकन से आप नहीं आते तो फिर बिल्कुल आना आपका बेकार है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट फेमस इसकी जगह है। यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ के लिए आप जब आएँ तो ये समझ लें कि आपको पूरा एक होल डे चाहिए। हम ये समझ रहे थे कि हम यहाँ पर शाम में जाएंगे और हम इसको पूरा जो है वो डिस्कवर कर लेंगे, लेकिन ये हमारी भूल थी। हमें यहाँ पे निकलना चाहिए था कम से कम दोपहर के 1 बजे। अगर हम निकलते और हम यहाँ पहुँचते, आधा 1 घंटा हमें यहाँ पे पहुँचने में लगा था। उसके बाद आपके पास अगर पूरा दिन होगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरह डिस्कवर कर सकते हैं। यानी कि आप इसकी एक फ्लोर को घूमते हैं, ऊपर देखते हैं, शॉप्स हैं। आपको कोई शॉपिंग करनी है या नहीं करनी, लेकिन आप उसको विज़िट ज़रूर करें, आप उसके तमाम फ्लोर्स को देखें क्योंकि वो देखने के काबिल हैं। इतनी खूबसूरत जगह है वहाँ पर, बहुत हसीन उसको डेकोरेट किया हुआ है। ऊपर जो है एक फ़्लोर पर पूरी मोबाइल की शॉप्स थी और वहाँ पर लोग बैठकर उसको चेक भी कर रहे थे। जिनको परचेज़ करना था वो वहाँ पर उनके लिए बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट थी पूरी, और वो वहाँ पर उसको बैठ के चेक कर रहे थे। और अभी आपको वीडियो में आगे जाके सब कुछ नज़र आएगा। अभी तो हमने बहुत लंबी सी वीडियो ये इसलिए नीचे की बनाई थी ताकि ये फूड कोर्ट था पूरा दिखा सके, आने वालों को पता हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाने की मिल रही हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत कारामद बात बताने वाली हूँ जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ये नवे साहब खा क्या रहे हैं। ये इस वक्त हमने लिया था एक जिंगर था और ये चिकन का एक चेस्ट पीस जो होता है ना वो काट के सैलड के साथ दिया था। नवे साहब देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, मुझे भी तो मज़ा आ रहा था, लेकिन बहुत शदीद भूख लग रही थी और ये बिल्कुल नॉट इनफ था हमारे लिए। इसके बाद हमने सोचा था कि हम कुछ और खाएंगे, जो आगे जाकर अभी आप देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खाई थी। लेकिन ये बता दूँ कि ये जो था आई थिंक 20 बात का था, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 160 रुपीज़ का पड़ता है, और 160 नहीं सॉरी 140 का पड़ेगा आई थिंक। चलें ये आप खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन ये 20 बात का एक चिकन का पीस था। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से खाने के बाद आगे की तरफ गए थे। तो मैं आपको बताने वाली थी कि सबसे अहम बात यह है कि आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। हमें भी थोड़ी सी जो परेशानी हुई तो हमने कहा क्यों ना हम ये बात जो हमने एक आपकी आसानी के लिए हमने इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया, देखा कि कौन से रूट से हम यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। देखें ये फिर खाना सामने आ गया। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो है ना नवेद साहब लेकर आए थे, उन्होंने पूरा बुफ़े ले लिया था और यहाँ पर ये रोटियाँ थी, टिक्के थे, ये पानी पूरी, गोलगप्पे, छोलों का सालन, ये कोफ्ते हैं और इसमें बिरयानी थी और चिकन का एक सालन भी था इसमें। बहुत ज़बरदस्त खाना था, खैर टेस्ट अच्छा था। और जो वो पीछे बच्चा बैठा हुआ था ना, वो हमें बहुत बार बार देख रहा था कि ये आखिर ये 2 लोग इतना सारा खाना कैसे खा सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत भूखे थे और हम लोग को बहुत शदीद भूख लग रही थी क्योंकि पूरा दिन घूमते हुए हो गया था। तो हमने खाना खाया, लंच किया और उसके बाद फिर हम ये अब ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमने इसके तमाम फ्लोर्स देखने थे और जो सबसे टॉप फ्लोर जो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर जाना था, क्योंकि वहाँ से जो एक व्यू नज़र आ रहा था ना वो एक बहुत ही खूबसूरत व्यू था, जो भी आप ऊपर जाकर देखेंगे। और इसकी पिक्चर्स आपको मैं शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, जो मैं नवेद आपको शॉर्ट अब डालने वाली हूँ इसके बाद, उसमें आप वो पिक्चर्स ज़रूर देखिएगा। और इतनी मेहनत से जो हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ट्रैवल विद नवीद को। तो मैं आपको जो काम की बात बताने वाली थी वो ये थी कि हम लोग ठहरे हुए थे ब्रेड एंड पिलो होटल में, बैंकॉक के ये होटल है। और ये था
जिस जगह पर हम थे वो था सैमसन। सैमसन उस जगह का नाम था। बैंकॉक में एक जगह है सैमसन, वहाँ पर था ब्रेड एंड पिलो होटल। हम वहाँ से यहाँ तक किस तरह आए हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी। आप यहाँ पर बाई बस भी आ सकते हैं और बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, जो इनकी स्काई ट्रेन्स होती हैं उसमें भी आप आ सकते हैं। लेकिन हम बाई बस इसलिए आए थे क्योंकि हमने कुछ नया देखना था, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस से नहीं जाते हैं। और आप जानते हैं कि नवेद साहब को एडवेंचर्स बहुत पसंद है, नई नई जगह पे नई नई चीज़ों को आजमाते हैं। हालांकि मैं तो बहुत घबरा रही थी कि हमें रूट नहीं पता, लेकिन जब नवेद साहब साथ हों तो परेशानी की कोई बात ही नहीं होती है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसी से जाएंगे और देखते हैं कि ये बस कहाँ तक जाती है। और ये सिर्फ मुझे डराते हैं, लेकिन इनको सब पता होता है। और जब इन्होंने 54 नंबर की बस वहाँ से ली तो एग्जैक्टली हम बिल्कुल इसी जगह पर आके रुके थे जहाँ से हमने आइकन सयाम के लिए बोट लेनी थी। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था 5 मिनट्स का, लेकिन यहाँ पर जाने वालों के लिए मैं ये बता दूँ कि ट्रेन से आपको चीपर पड़ेगा बस का सफ़र। बस से आपको बहुत चीप पड़ता है। अगर आप बस से आएंगे तो आपको इसका फेयर तकरीबन जो पड़ेगा, इसका जो फेयर था वो तकरीबन, जो बस भी वहाँ पर 2 तरह की चलती हैं, एक लोकल बस होती है और एक एसी बस होती है। तो लोकल बस में कितना था नवेद साहब उसका फेयर? लोकल बस जो है 2 किस्म की लोकल बसें हैं वहाँ पर। एक छोटी बस जो है उसका 10 बात है और बड़ी बस जो है उसका 7 बात है। और इसमें एक चलती है वहाँ एसी बस, वो होती है उसका है तकरीबन 17 बात। और जो है आप अगर ट्रेन से जाते हैं, ब्लू ट्रेन से जाते हैं, तो वो वहाँ पर जो ट्रेन है वो आपको 100 बात लेगी एक बंदे के। और जो है अगर आप टैक्सी में जाते हैं तो वो 300 बात लेती है। तो उसके अकाउंटिंग टू बस और ट्रेन जो है टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। और जो है बस जो है वो चीपर है, यानी कि हमें बस से ही आना चाहिए। जो लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं और वो दूसरी जगह खर्च कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, यहाँ से पूरा व्यू हमने आपको दिखाया था नीचे से जाने के बाद। ये जो है ना, अभी हम समझ लें इसके किसी फ्लोर पर थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, 4th या 5th फ्लोर था। तो हमने ये वहाँ से व्यू लिया था। ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत यहाँ पे शॉप्स हैं और कितना खूबसूरत, ऐसा लगता है कि कोई बर्फ़ जमी हुई है। हालांकि ये सिर्फ एक डेकोरेशन चीज़ है। ये नवेद साहब आइसक्रीम खा रहे थे यहाँ पर, और मैंने भी आइसक्रीम खाई थी। कोकोनट के अंदर आइसक्रीम मिलती है, बहुत मज़े की होती है। इसके अंदर बेस में ही कोकोनट डला हुआ होता है, जिसे कच्चा नारियल जैसा होता है वो होता है। ऊपर आइसक्रीम होती है और वो भी कोकोनट की बनी हुई होती है। पूरे थाईलैंड में और मलेशिया में ज़्यादातर कोकोनट की ही आइसक्रीम हमें मिली है। और फिर उसके ऊपर जो है वो थोड़े थोड़े से फ्रूट्स और डिफरेंट जो हैं वो उसके अंदर चीज़ें डाल देते हैं। वो खैर बहुत अच्छा टेस्ट था। आइसक्रीम भी हमने इंजॉय की थी। और आइसक्रीम मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे पैसे कभी भी नहीं याद रहते। आइसक्रीम उसकी थी तकरीबन, आइसक्रीम जो है वहाँ पर 50 बात की थी, आई थिंक 50 बात की जो है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी था 50 बात की थी। खैर, और यहाँ पर ये बेकरी आइटम्स वगैरह भी थे। बहुत सारी जगहों में तो हमें ये होता है कि इज़ इट हलाल और नॉट, लेकिन जहाँ पर हलाल लिखा होता है तो 100% फिर हलाल ही होती है चीज़ें। तो यहाँ से बस हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग फिर ऊपर चले गए थे। और आइसक्रीम एक्चुअली हमने बाद में खाई थी आखिर में। और फिर हम लोग दोबारा इसके 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पर हम जाते रहे और वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। नवेद साहब थक जाते थे तो इसीलिए बैठ जाते थे स्टेयर्स पे, मगर इन्होंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ी, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप भी इस जगह को देखें, समझें और आपको यहाँ पर कब आना चाहिए, किस टाइमिंग में आना चाहिए। आप अगर यहाँ पर दिन में आएंगे तो आपके पास बहुत टाइम होगा, आप बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। और आफ्टर मगरिब, यानी कि समझ लें कि शाम के वक्त जो है जैसे ही अंधेरा होता है तो बाहर जो है वो जो शावर का जो डांसिंग होती है वाटर की, वो शुरू हो जाती है। वहाँ पर बहुत कलरफुल होती है और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही होती है। वो थोड़ी मतलब आधे घंटे तक के लिए होती है और फिर वो बंद हो जाती है। तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये तो इतनी बड़ी जगह है, इतना स्पेस है यहाँ पर, शॉपिंग के बहुत सारे मौके हैं, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए। और एक्चुअली हमें यहाँ से जो है जाना था और आगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक